अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज के सीएमपी के इस हमारे वेब टॉक में आप सबका खैर मकदम है। मैं फारूक सिद्दीकी, एएमपी एनजीओ कनेक्ट हेड, आप सब लोगों का इस्तकबाल करता हूं। वील कीप दिस सेशन इन अ मिक्स लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू, क्योंकि हमारे पास हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जगहों से लोग इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, इस जूम टॉक पर एज वेल एज फेसबुक पर। तो सब लोगों का ध्यान रखते हुए we'll have this session in a mixed language of English, Hindi and Urdu. May I request Sister Farhat to please play AMP introduction, और मैं दरख्वास्त करूंगा फरमान भाई से, हमारे उत्तराखंड के साथी हैं, हमारी नेशनल टीम के मेंबर हैं, वो थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे। My name is Farman Iqbal. I am from Dehradun, looking after Dehradun chapter and a proud member of AMP NGO Connect national team. Presently, I am working with Bank of India as a senior manager, posted in Dehradun only. So I am here to introduce AMP to the new associates recently joined with AMP. पुराने लोग माशाल्लाह जानते हैं एएमपी के बारे में ज़्यादातर। तो एएमपी is registered in India, USA, UK and Australia as a non-profit organization. AMP has completed 13 years serving our community, especially in the field of education, employment and empowerment. AMP has a vision to positively impact lives of 10 million people by 2030. The mission, AMP's mission, to empower the underprivileged for the greater benefit of the society in general and nation as a whole. AMP's vision is to be a model community which is advanced in education, socially progressive, culturally vibrant, politically influential, and economically dynamic. Achievements of AMP. School Development Program, SDPs, 2,800 plus skill development lectures, 800 plus schools connected so far, 2.8 lakhs students benefited, 110 plus teachers training and parenting workshops have been organized by AMP. Employment Assistance Cell, EAC, 360 plus job fairs and job drives have been organized by AMP. 21,000 plus candidates employed so far. 220 plus employability training program has been organized. 17,000 plus degree students benefited yet. Third one is scholarships and self-employment. AMP has provided 800 plus higher education scholarships, 860 plus orphans education have been sponsored, 225 plus families transformed by offering self-employment assistance. Fourth one, AMP Resource Center, 660 plus career counselors, 2,500 plus students counseled so far, 50 plus documents on career guidance, 1,500 plus career charts distribution have been done by AMP Resource Center. Awards and partnerships. 380 plus renowned educationalists connected and awarded. 50 plus partners for skill training and job fairs. 2,000 plus partner NGOs for various programs. It was 1,000 plus earlier. Recently, AMP has successfully onboard 1,000 plus new NGOs to its organization, to its what you say, to its board. New digital initiative by AMP. Farhat, I request you to please next slide, please. New digital initiative by AMP. Am I audible, Sister Farhat?
Yes, you are audible. Next slide, please, Farad. Sorry, yes. New digital initiative by AMP. AMP has recently launched indiazakat.com, the indiamentors.com, and empowerjobs.com. indiazakat.com is first crowdfunding platform which is to bring zakat seeker and zakat givers on a unified platform in order to with the intent of bringing socio-economic transformation of the needy and distressed people. The India Mentors envision a fully educated and empowered student community for the development of vibrant student and young professional. Empower Jobs recently launched by AMP to assist youth to get jobs. AMP reach on ground presence is currently AMP has more than 140 plus active chapters, which represents across 26 states with 16 countries and 6,000 plus active members. AMP has online presence to more than 1,25,000 members and professionals are connected with AMP. So this is all about AMP. I request Farooq Bhai to please take the charge. Thank you so much. And if you wish to join AMP, you just need to log in at our website, ampindia.org/joinamp. Inshallah, our team will assist you. So now it's the time to invite our guest of the day, our speaker of the day, Chartered Accountant राजेश वर्मा साहब. राजेश वर्मा भाई की जो मोहब्बत है AMP के साथ और हम लोगों के साथ, वो इस बात से जाहिर है कि माशाल्लाह हम लोगों का ये दूसरा वेबिनार आज हो रहा है विद इन 6 month टाइम. वी हैव हिम इन आवर लास्ट वेबिनार अराउंड मार्च. और जब राजेश भाई को ये पता चला कि AMP ने अल्हम्दुलिल्लाह 2000 से ज्यादा और NGOs को इस प्लेटफॉर्म पे जोड़ दिया है और इस प्लेटफॉर्म पे और लोग शामिल हुए हैं, तो जैसा AMP का हमेशा से वाज़े रहा है कि AMP ने अपने NGO पार्टनर्स के साथ उनका पूरा ख्याल वो रखते हुए तबादला ख्याल आपस में चलता रहे, एक दूसरे से सीखते रहें, उसी सिलसिले में NGOs की कैपेसिटी बिल्डिंग के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते रहते हैं. तो ये प्रोग्राम भी उसी सिलसिले में है. राजेश भाई ने खुद मेरे से कहा कि भाई नए NGOs अब आ गए हैं, क्यों ना इन लोगों को भी हम लोग कुछ ट्रेन करें, क्योंकि जैसे हमारे पास ज्यादातर NGOs जो हैं वो यूपी बिहार के दूर दूर इलाकों से आए हुए हैं, जहाँ पे कुछ लोगों की NGOs के रजिस्ट्रेशन के ताल्लुक से दिक्कत रही कि वो रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे हैं या उनको ज्यादा मालूमात नहीं है, या गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट CSR फंडिंग को लेके बहुत सारे सवाल उनके जहन में थे जो हमारे पास आते रहते थे. तो हमने राजेश भाई से दरख्वास्त करी और ही वॉज वेरी काइंड टू एक्सेप्ट आवर इन्विटेशन, और उन्होंने ये कहा कि मैं ज़रूर इस दोबारा से AMP के प्लेटफॉर्म पर आके आप सब लोगों को जो भी उनकी ये लर्निंग है वो शेयर करेंगे. राजेश भाई इज नोन एज अ NGO गुरु हमारे फ्रेटर्निटी में, और अभी तक कई सौ ऑर्गेनाइजेशंस को NGOs को सपोर्ट कर चुके हैं उनके रजिस्ट्रेशन में, उनको CSR कॉर्पोरेट फंडिंग दिलवाने में, उनके प्रोजेक्ट्स में, और भी तमाम जो जुड़ी जो मतलब छोटी बड़ी चीजें रहती हैं. तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपके पास अनगिनत डिग्रीज हैं ICAI के, और कई NPO प्रोग्राम वगैरह भी आपने किए हुए हैं. सो ज्यादा वक्त ना लेते हुए आई जस्ट हैंड ओवर दिस सेशन टू आवर एस्टीम्ड गेस्ट ऑफ द डे, CA राजेश वर्मा साहब. ओवर टू यू राजेश भाई. थैंक यू फारूक भाई, और AMP के ऑल मैनेजमेंट टीम को और प्लस जितने भी अटेंडीज पार्टिसिपेंट्स हैं इस वेबिनार के, सभी को मेरा नमस्कार. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. आई एम थैंकफुल टू फारूक भाई टू bring me here, and I'm really honored to be here with
AMP, presenting my views and trying to empower NGOs which are connected with AMP. So, as Farooq Bhai told, he's already given my introduction. I'm Rajesh Verma, and by profession I'm a chartered accountant and running NGO Guru, which is helping NGOs from all over India. As Farooq Bhai and I discussed regarding the topic of this webinar, I generally take webinars and trainings on how to get grants, how to get fundings for NGOs. कि एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग कहाँ से मिले, ग्रांट्स कैसे ले सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ग्रांट्स हो, फॉरेन फंडिंग हो या CSR फंडिंग हो, प्लस उसमें ग्रांट्स को लेने के लिए प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना, फाइल करना और कंप्लीट सपोर्ट हम लोग प्रोवाइड करते हैं. बट जैसा कि फारूक भाई से डिस्कशन हुआ है कि बहुत सारे नए लोग जुड़े हैं, दोज हु वांट टू स्टार्ट NGO, जिनको NGO स्टार्ट करना है, और बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज कि करेक्ट NGO का स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसे इसको रजिस्टर करें, क्या क्या अप्रूवल्स एंड परमिशन चाहिए होता है इसके लिए. सो ये गाइडेंस हमें प्रोवाइड करना है टू द एस्टीम्ड मेंबर्स ऑफ दिस एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स. तो मैं अपना टॉपिक लिमिटेड रखूंगा, हाउ टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग व्हिच NGO स्ट्रक्चर इज द बेस्ट एंड what are different approvals, registrations and formalities required to obtain funds to get grants from government or from other sources of funding for NGOs. तो डिस्कस करते हैं. जहां तक NGO का बात है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑल्सो नोन एज नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, NPO भी बोलते हैं इसको, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन का, एक NGO का इंटेंट जो होता है वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता है. जो एम है, ऑब्जेक्टिव्स है, दैट इज टू प्रोवाइड सोशल सर्विस और टू डू सम सोशल वर्क. समाज सेवा के कार्यों के लिए बनाई जाती है NGO को. और जाहिर सी बात है कि आपके भी जहन में कोई ना कोई समाज सेवा के कार्य का विचार आया होगा, तभी आप NGO स्टार्ट किए हुए हैं या स्टार्ट करना चाह रहे हैं. मैंने बोला कि एक NGO का इंटेंट, एम नहीं होता है प्रॉफिट अर्न करना. दैट डज नॉट मीन दैट एन NGO कैन नॉट डू बिजनेस. एक NGO का उद्देश्य जो होता है लाभ अर्जन करना नहीं होता है. इसका मतलब ये नहीं है कि NGO प्रॉफिट कमा नहीं सकती, प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकती. यस, एक NGO बिजनेस कर सकती है, एक NGO बिजनेस एक्टिविटी चला सकती है, लेकिन जो उससे प्रॉफिट आएगा, जो उससे लाभ आएगा, दैट प्रॉफिट मस्ट बी यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस, फॉर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ NGO. आई रिपीट, देयर इज नो बार, देयर इज नो लिमिटेशन ऑन मेकिंग प्रॉफिट. An NGO can make profit, but the profit has to be utilized for the object of NGO. आप खूब लाभ कमाएं, खूब आमदनी करिए, बट जो आपके NGO का आमदनी है, जो इनकम है, जो सरप्लस है, वो सरप्लस जो है NGO के उद्देश्य के प्राप्ति के लिए ही इस्तेमाल करेंगे आप. आगे बढ़ते हैं. एक NGO जो होता है इंडिया में, भारत में 3 टाइप्स के होते हैं. 3 टाइप का एक NGO होता है. NGO का पहला टाइप है ट्रस्ट, सेकेंड वन इज सोसाइटी एंड थर्ड वन इज सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 NGO. You can share your PPT, वो राजेश भाई. Now you are host. जी मैं शेयर करता हूँ, दिखाता हूँ. सो NGO के 3 टाइप्स होते हैं एंड मैं अपना अभी PPT भी शेयर करता हूँ आपसे. एक NGO के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ NGOs: सोसाइटी, सेक्शन 8 कंपनी एंड ट्रस्ट.
विल डिस्कस वन बाय वन कि ट्रस्ट क्या होता है, सोसाइटी क्या होता है, सेक्शन 8 कंपनी क्या होता है, तीनों में डिफरेंसेस क्या है, एंड देन ऑटोमेटिकली विल कम टू अ कंक्लूजन कि हमारे लिए बेहतर कौन सा है, ट्रस्ट बेहतर है, सोसाइटी बेहतर है, या सेक्शन 8 कंपनी बेहतर है। सब ट्रस्ट जो होता है इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंडर होता है। जो ट्रस्ट का गाइडिंग प्रोविजंस है, जो लॉज है, दैट इज इन इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 में इसके लॉ है। लेकिन बड़ी मतलब डिफरेंट सी बात यहां पर है कि जो प्रोविजंस है, जो लॉ है ट्रस्ट का, वो इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 में है, लेकिन जो ट्रस्ट पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, जो एनजीओज है, वो इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 से गवर्न नहीं होता है। इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 अप्लाइज ओनली ऑन प्राइवेट और फैमिली ट्रस्ट। एक और मजे की बात यह है कि इंडिया में ट्रस्ट का कोई रजिस्ट्रेशन होता ही नहीं है, बारिंग फ्यू स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, जहां पे एक चैरिटी कमिश्नर का सर्टिफिकेट मिला करता है। अदर स्टेट्स में ट्रस्ट का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। जो आप लोग रजिस्ट्रेशन करवाया होगा किसी लोगों ने, वो जो होता है आपके ट्रस्ट डीड का, उस डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन होता है। देयर इज नो रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट इन इंडिया। यानी ट्रस्ट बनाने के लिए एक ट्रस्ट डीड बनता है, एंड द ट्रस्ट डीड इज रजिस्टर्ड अंडर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एक्ट 1908। जो आपका डॉक्यूमेंट्स है, उस डॉक्यूमेंट्स का रजिस्ट्री होता है सब रजिस्ट्रार ऑफिस में। यानी अगर हम बात करें तो ट्रस्ट के केस में कोई सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा। कोई भी दो लोग मिलकर के बना सकते हैं ट्रस्ट, और जो ट्रस्ट है ये हमेशा नेशनल लेवल ही होता है, अनलेस अनटिल आप इसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं कि नहीं, आपका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो स्टेट या डिस्ट्रिक्ट या फिर कोई स्पेसिफिक लोकेशन में सीमित होगा। ट्रस्ट में प्रॉब्लम क्या है कि जो आपके ट्रस्ट का नाम है, वो नाम आपके लिए रिजर्व नहीं रहेगा। एनीवन हु वांट्स टू यूज द सेम नेम, वो उसी नाम को इस्तेमाल करके दूसरा एनजीओ बना सकते हैं। आप उनको नहीं रोक सकते क्योंकि नाम आपके लिए रिजर्व नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या होता है इसमें कि ट्रस्ट के केस में फॉर्जरी के चांसेस बहुत ज्यादा होती है। आफ्टर अ जनरेशन कोई भी आके स्टैंड कर जाएगा कि यस आई एम ऑल्सो ट्रस्टी ऑफ दिस ट्रस्ट एंड आई एम द ओनर ऑन अ सिंगल पीस ऑफ पेपर। क्योंकि होता क्या है कि ट्रस्ट में ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट के लिए सिंगल एक पीस ऑफ पेपर में सिंपली क्या कर दिया आपने, एक रिजोल्यूशन पास कर दिया या किसी को ऐसे एक्सेप्ट कर लिया एज ए ट्रस्टी, उतना सफिशिएंट है उसको ट्रस्टी बनाने के लिए। तो डिस्प्यूट्स बहुत ज्यादा होता है ट्रस्ट के केस में। और रिगार्डिंग ओनरशिप बड़ी सारी कंफ्यूजन आती है बाद में, फिर लीगल इश्यूज, लीगल फाइट्स स्टार्ट होता है। तीसरी बात, ट्रस्ट का कोई फॉर्मल रिकॉर्ड किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में कहीं पर कोई रिकॉर्ड्स आज सच नहीं होता है पब्लिक व्यू के लिए। लाइक इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी की बात हम जब करेंगे तो विल डिस्कस कि उसका पूरा रिकॉर्ड जो होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साइट पे होता है। बट यहां पर ऐसा कोई भी यूनिफॉर्मिटी, कोई रिकॉर्ड्स का एक जगह पर नहीं होता है। तो एक ट्रस्टवर्दीनेस, ट्रांसपेरेंसी की कमी यहां पर होती है। जो आपके स्टेक होल्डर्स है, जो डोनर्स है आपके, उनका कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से नहीं आता है ट्रस्ट के ऊपर। तो ये कुछ डिमेरिट्स है। मेरिट्स ये होता है कि बड़ा आसान है बनाना, इसको इजीली बना सकते हैं। ट्रस्टी बनाया, उसको रजिस्टर कराया, आपका ट्रस्ट स्टार्ट हो गया। पैन कार्ड बनाइए, अकाउंट खोलिए, काम शुरू करिए। इजी टू मैनेज, जब मर्जी बंद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है आपको। तो स्टार्टअप्स के लिए जो लोग नए एनजीओ बनाना चाह रहे हैं
श्योर नहीं है कि चलेगा नहीं चलेगा, काम का स्केल ऑफ ऑपरेशंस क्या होगा आगे, दे शुड स्टार्ट विथ ट्रस्ट। अब बात करते हैं सोसाइटी का। सोसाइटीज का जो गवर्निंग लॉ है इंडिया में, दैट इज सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, और एटलीस्ट 7 persons आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सोसाइटी। अगर वो 7 डिफरेंट स्टेट से है, इट कैन बी अ नेशनल लेवल। इफ दे आर नॉट फ्रॉम 7 डिफरेंट स्टेट्स, इट विल बी स्टेट लेवल सोसाइटी। और जो सबसे बड़ी डिमेरिट है सोसाइटी का, ये सोसाइटी रन्स ऑन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, प्रजातांत्रिक सिद्धांत पे चलता है सोसाइटी। इसका मतलब यह है कि ऑल मेंबर्स शैल हैव इक्वल राइट्स। एक सिंगल वोटिंग राइट सारे मेंबर्स का होगा, सबके पास बराबर का समान अधिकार है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि आपको सोसाइटी फॉर्म करने की इच्छा हुई, आपने 6 मित्रों को मिलाकर के, आपने अपने 6 दोस्तों को मिलाकर के बनाया सोसाइटी। सारा काम आप कर रहे हैं, फंडिंग आप कर रहे हैं, ऑल एक्टिविटीज एवरीथिंग इज बीइंग डन बाय यू ओनली। जिस दिन सोसाइटी का काम चल पड़ेगा, कुछ अच्छा हो जाएगा, देन अदर 6 persons विल कम कि भैया जो भी हो रहा है मेरे नाम की वजह से हो रहा है। और अगर उस 6 में से कोई भी 5 मिल गए एक साइड में, तो आपको निकाल करके बाहर कर सकते हैं और किसी और को अपॉइंट कर सकते हैं। आपने सब कुछ किया और आपका यहां से काम खत्म। ये बहुत बड़ी डिमेरिट है सोसाइटी की। और तीसरी बात यह है कि नाम यहां भी रिजर्व नहीं होता है, कोई फॉर्मल रिकॉर्ड यहां भी नहीं होता है। तो सोसाइटी जो होता है ये भी बेहतर है कहां के लिए, जैसे कोई धार्मिक कमिटीज है, लाइक कहीं पर कोई स्पोर्ट्स क्लब है, क्रिकेट क्लब है, कोई RWA है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस, उन सब जगहों के लिए सोसाइटी बेहतर है, क्योंकि वहां पर सबको समान अधिकार चाहिए। लेकिन अगर आपको कोई काम करना है, कोई बिजनेस करना है, कोई एक्टिविटी करना है, देन सोसाइटी इज द वर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ NGO फॉर यू। अब थर्ड जो है आपका, दैट इज सेक्शन 8 कंपनी। मैं बोला करता हूं कि एनजीओ का बेस्ट स्ट्रक्चर है सेक्शन 8 कंपनी जो होता है। इसका रजिस्ट्रेशन जो होता है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर होता है, और जिस प्रकार से एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनता है उसी प्रकार से आपका सेक्शन 8 कंपनी बनेगा। ओनली डिफरेंस इज कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो क्या है, बिजनेस एंटिटी है, और ये आपका चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है यहाँ पर। यानी यहां पर जो आपका प्रॉफिट होगा वो मेंबर्स में एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। द प्रॉफिट ऑफ दिस एंटिटी शैल बी यूटिलाइज्ड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ एनजीओ। और यहां पर आपका नाम जो है संस्था का, जो कंपनी का नाम है, वो आपके लिए रिजर्व है। नोबडी एल्स कैन हैव द सेम नेम अंडर कंपनी एक्ट। यहां पर मेंबर्स की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है। आपकी सारी रिकॉर्ड, सारी डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट के पोर्टल पे अवेलेबल होगा। मींस जो आपके स्टेक होल्डर्स है, जो डोनर्स हैं आपके, उनका एक कॉन्फिडेंस, उनका एक ट्रस्टवर्दीनेस ज्यादा होता है इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी। सो अब तीनों का मैं कंपेरिजन करूं एक साथ में, तो वी रीच टू अ कंक्लूजन दैट सेक्शन 8 कंपनी इज द बेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ एनजीओ, बट कंप्लायंसेस बहुत ज्यादा होता है। तो जो स्टार्टअप्स हैं दे शुड गो फॉर ट्रस्ट। और कोई अगर स्पोर्ट्स क्लब वगैरह है, कोई RWA है, कोई रिलीजियस कमिटी है, देन दे शुड गो फॉर सोसाइटी। यानी डिपेंडिंग अपॉन द पर्पस कि आपका उद्देश्य क्या है संस्था बनाने का, उस उद्देश्य के अकॉर्डिंग जो है आपका स्ट्रक्चर डिफर करता है कि आपके लिए बेस्ट स्ट्रक्चर कौन सा है, ट्रस्ट, सोसाइटी या सेक्शन 8 कंपनी। अब आई थिंक जो लोग नया ट्रस्ट बनाना चाह रहे हैं उनको एक क्लियर हो गया होगा
अपने उद्देश्य के अकॉर्डिंग कि उनको कौन से स्ट्रक्चर का चुनाव करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हो सकता है कई लोग नॉर्मल बिजनेस पर्पस के लिए, नॉर्मल काम के लिए, कोई इंस्टीट्यूट रन करने के लिए, स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाने के लिए एनजीओ फॉर्म किए हो और उन्होंने करा लिया सोसाइटी रजिस्ट्रेशन। क्वेश्चन यह था कि अब क्या करें। आज समझ में आया कि सोसाइटी जो है बेहतर नहीं है और डिफिकल्टी उनको महसूस भी हो रहा होगा, सबसे साइन करवाना, या अगर एफसीआर लेना है तो सबका आईबी का रिपोर्ट इकट्ठा करवाना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो उनके पास कन्वर्जन का कोई ऑप्शन नहीं है। देयर इज नो कन्वर्जन पॉसिबल फ्रॉम सोसाइटी टू ट्रस्ट और कंपनी। द ऑप्शन इज कि आप क्या करिए, पैरेलली एक एनजीओ और बनाएं जो ट्रस्ट या कंपनी होगा, उसको 3 साल तक कंटिन्यू करिए। आफ्टर 3 years यू कैन ट्रांसफर योर एग्जिस्टिंग एनजीओ टू द न्यू एनजीओ। आई थिंक दैट्स इट फॉर स्ट्रक्चर ऑफ एनजीओ। अब हम आगे बात करेंगे कि एक एनजीओ के लिए क्या क्या रजिस्ट्रेशन एंड अप्रूवल्स जो बेसिक है वो रिक्वायर्ड है। फारूक भाई, कोई जो लोगों का क्वेरी है स्ट्रक्चर के ऊपर, उसको अभी ले ले या फिर बाद में ले? राजेश भाई एकदम एंड में लेंगे क्वेश्चन आंसर, अपने सेशन में एंड में होता है। ओके, लास्ट में लेंगे राजेश भाई जी। जी 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 बिल्कुल, थैंक यू। चलिए अब हम बात करते हैं कि आपने एनजीओ रजिस्टर करा लिया, यूट्यूब का डिसीजन कि मुझे क्या करना है, ट्रस्ट करना है, कंपनी करना है, सोसाइटी करना है, आपने रजिस्टर कर लिया। अब आता है कि सिर्फ जो एक बेसिक रजिस्ट्रेशन है वो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि अगर बात करेंगे कि एक एनजीओ को फंडिंग लेने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो अब देखिए आपका एनजीओ रजिस्टर्ड होना चाहिए, योर एनजीओ मस्ट बी रजिस्टर्ड। उसी सेकेंड रिक्वायरमेंट कि आपका जो एनजीओ है उसका हर साल जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट होना चाहिए। यू मस्ट हैव प्रिपेयर्ड एनुअल रिपोर्ट एंड फाइल्ड इनकम टैक्स रिटर्न फॉर लास्ट 3 years। आपका नीति आयोग में रजिस्ट्रेशन मस्ट है, चाहे आप सीएसआर की बात करें, चाहे आप एफसीआरए की बात करें, या फिर आप गवर्नमेंट ग्रांट्स की बात करते हैं। किसी भी ग्रांट्स को लेने के लिए आपके एनजीओ का नीति आयोग में दर्पण पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है और कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। वहां पर जाकर सिंपली एक फॉर्म होता है, फिलअप करिए, यूनिक आईडी, इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है, वो आईडी ही सफिशिएंट है, उसको हर जगह मेंशन करना होता है। जो 4th रिक्वायरमेंट है 12A एंड ATG, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको आपका संस्था जो है उसको सही मायने में अगर एनजीओ बोलना है तो एक संस्था एनजीओ तभी कहलाती है जब उसके पास 12A और ATG का रजिस्ट्रेशन हो इनकम टैक्स में। अदरवाइज मैं चूंकि बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस I don't consider an organization not having 12 ATG as NGO, क्योंकि आपको टैक्स पे करना है। जो डोनर्स है they will also not get any benefit of their donations। तो 12A और ATG में रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। अगर आप फॉरेन फंडिंग लेना चाहते हैं, अगर आप विदेशों से अनुदान लेना चाहते हैं, तो आपके संस्था का FCRA में रजिस्टर्ड होना कंपल्सरी है। And the last one is CSR registration। If you want to get CSR funding, तो इस साल से लागू हुआ है, इस साल जनवरी 2021 से लागू हुआ है कि आपके संस्था का CSR में रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। तो आइए बात करते हैं 1 by 1। हमने बात कर लिया रजिस्टर्ड एनजीओ का। We talked about annual audit report and ITRs। We talked about नीति आयोग। अब हम बात करते हैं सबसे पहले 12A और ATG का। 3 सोर्स होते हैं फंडिंग के। क्योंकि टाइम कम है, मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूं चीजों को। जो इंपॉर्टेंट जो आज का टॉपिक है मैं वही कवर अप करूंगा। These are 3 सोर्स ऑफ फंडिंग फॉर एनजीओ, और ये तीनों ही सोर्स के लिए सेम रिक्वायरमेंट है। आपके पास ये सारे रिक्वायरमेंट्स आपको फुलफिल करना चाहिए। इफ यू फुलफिल दिस रिक्वायरमेंट्स देन ओनली यू कैन अप्लाई फॉर फंडिंग। अब बात करते हैं हम लोग पहले
चलिए बात कर लेते हैं पहले इसका, हम लोग करते हैं 12A एंड ATG का, बिकॉज 12A और ATG में बहुत सारे चेंजेस आए हैं और सबसे मेजर चेंज ये है, इसको बिल्कुल आप लोग ध्यान से सुनिएगा, कि वैसे एनजीओ जिनका ऑलरेडी 12A और ATG में रजिस्ट्रेशन है, वैसी संस्थाएं जिनका 12A या ATG या दोनों या 1023C में रजिस्टर्ड है जो एनजीओ, उन सबका रजिस्ट्रेशन जो है बढ़े हुए डेट्स के अनुसार 31 अगस्त 2021 को उनका रजिस्ट्रेशन जो है ऑटोमेटिकली खत्म, समाप्त हो जाना था। लेकिन अभी आपका शायद उनको पता था कि आज हमारा एएमपी का लाइव वेबिनार होने वाला है, तो 10 मिनट पहले उन्होंने, आज इनकम टैक्स का एक नोटिफिकेशन आया है, जो डेडलाइन था 31 अगस्त, उसको बढ़ा के कर दिया गया है 31 मार्च 2022। यानी जिन संस्थाओं का 12A और ATG में रजिस्ट्रेशन है, उनको अपने संस्था को 12AB और ATG में पुनः फिर से री रजिस्टर करना पड़ेगा बिफोर 31 मार्च 2022। अगर वो 31 मार्च 2022 तक अपने संस्था का 12AB और ATG में री रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं करते हैं, तो उनका जो 12A और ATG का रजिस्ट्रेशन है वो ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा, एंड हो जाएगा 31 मार्च 2022 को, और 1 अप्रैल 2022 के बाद वो 12A और ATG का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। तो जिन संस्था के पास 12B और ATG है, वो लोग बिल्कुल केयरफुली और इसको सीरियसली लेकर के अपने संस्था का री रजिस्ट्रेशन अप्लाई करवा लीजिए। फॉर्म नंबर 10A फाइल करना है इनकम टैक्स पोर्टल पे, फाइल करके अप्लाई आपका हो जाएगा। विदिन 3 मंथ्स आपको जो है ऑटोमेटिकली वहां से आपका सर्टिफिकेट वहां से आ जाएगा कि आपके संस्था का री रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है 12B और ATG में, व्हिच विल बी वैलिड फॉर 5 years। और हर 5 साल में आपको अपने संस्था का जो है 12AB और ATG में पुनः पंजीकरण कराना पड़ेगा। Because earlier it used to be permanent, perpetual. Once you got 12A and ATG, it is permanent. But now under the amended provisions, these 12A and ATG certificates are valid only for 5 years. In each 5 years, you have to get it renewed. Means एक दशक में, in 1 decade, you have to go for 2 times. Complete perusal of documents, complete checking of documents. संस्था के उद्देश्य को देखा जाएगा, आप सही कार्य कर रहे हैं तभी आपका 12B ATG का रिन्यूअल होगा, अदरवाइज आपका 12B ATG है कैंसिल कर दिया जाएगा। आगे बात करते हैं वैसी संस्थाओं का जिनके पास 12A और ATG नहीं है, उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए भी वही सेम फॉर्म है, फॉर्म नंबर 10A। और दूसरी बात यह है कि 12A और ATG दोनों के लिए सेम फॉर्म है, फॉर्म नंबर 10A में ही अप्लाई करना है आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे, और इसका एप्लीकेशन फाइल करना है आपको जो फाइनेंशियल ईयर है उसके स्टार्टिंग से 1 महीना पहले। यानी अगर आपको 22-23 में 12A और ATG का बेनिफिट लेना है, तो ऐसे तो 28 फरवरी होता है, लेकिन आज डेट बढ़ा है उसका भी, तो 31 मार्च 2022 के पहले आपको फॉर्म नंबर 10A फाइल कर देना पड़ेगा। और यू कैन गेट 12A एंड ATG रजिस्ट्रेशन डन फॉर योर एनजीओ। बहुत सिंपल है, ऑनलाइन फाइल करिए। जिन्होंने काम नहीं शुरू किया है उनको भी मिल जाएगा पंजीकरण 12A और ATG का प्रोविजनल। बाद में उनको दिन 6 months ऑफ स्टार्टिंग वर्क या फिर 3 साल के पहले उनको इसको रेगुलराइज करना पड़ेगा, और उसके बाद में जो सर्टिफिकेट आएगा रेगुलराइज्ड वो 5 साल के लिए मान्य होगा, 5 years के लिए वैलिड होगा। और मैं काफी क्विकली मैं 2 और महत्वपूर्ण बात टच करूंगा इसमें, कि जो लोग के पास ATG है या ले लेंगे,
उनके ऊपर 2 कंप्लायंसेज डाली गई है नए प्रोविजंस में। अंडर एमेंडेड इनकम टैक्स प्रोविजंस, those organizations having ATG registration, उनको क्वार्टरली बेसिस पर एक एनुअल स्टेटमेंट ऑफ डोनेशंस फाइल करना है इनकम टैक्स की। और सॉरी, क्वार्टरली को अभी बढ़ा दिया गया, एनुअल कर दिया गया, आई एम सॉरी। एनुअली एक स्टेटमेंट फाइल करना है ऑफ डोनेशंस, और जो फाइल होगा 31 मई ऑफ द असेसमेंट ईयर, यानी फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए 31 मई 22 तक आपको एनुअल स्टेटमेंट डोनेशंस फाइल करना है। और जितने भी आपके डोनर्स हैं जो आपको डोनेशंस दे रहे हैं, तो उनको आपको सर्टिफिकेट ऑफ डोनेशंस भी प्रोवाइड करना है। और दोनों में से कोई भी एक काम अगर आप भूल जाते हैं तो आपके ऊपर ₹200 पर डे का लेट फीस लगेगा। और एक सेक्शन 271K है, अंडर दैट सेक्शन यू मे बी पेनलाइज्ड फॉर ₹10,000 to 1 लाख। तो आप ध्यान रखिए बिल्कुल, अगर आपका 12 और ATG है, then you have to be on your toes so far as compliances are concerned। आपको बिल्कुल ही सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी कंप्लायंस अगर आपका छूटता है तो आपके ऊपर ₹200 पर डे का मीटर ऑन हो गया फाइन का, लेट फीस का, और 10,000 से लेकर के 1 लाख तक का आपको फाइन भी भरना पड़ेगा। तो एनजीओ रन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट आपको बहुत ही सतर्क रहना है कि जो भी कंप्लायंस है, दैट कंप्लायंस मस्ट बी डन ऑन टाइम, बिकॉज फेल्यूर इज नॉट एक्सेप्टेबल और नॉन कंप्लायंस इज नॉट एक्सेप्टेबल अंडर दिस गवर्नमेंट, बिकॉज दे आर आफ्टर कि कहां से उनका रेवेन्यू का सोर्स जनरेट हो। आगे हम बात करते हैं CSR के लिए, क्योंकि मेजर जो सोर्स ऑफ फंडिंग है आजकल, दैट कम्स फ्रॉम CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप लोग जानते होंगे, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बिकॉज द मनी दैट डोनेशंस व्हिच कम फ्रॉम कॉर्पोरेट इज कॉल्ड CSR फॉर NGOs। और इंडिया में कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर एक सेक्शन है, सेक्शन 135, उस सेक्शन में प्रोविजंस है कि दोज कॉर्पोरेट्स हैविंग नेट प्रॉफिट ऑफ 5 crore or more, net worth of 500 crore or more, and turnover, sorry, not and or turnover of 1,000 crore or more, have to spend 2% of their average net profit on charitable activities. So those corporates which are required to do CSR funding, which are required to do CSR spending, they have to spend at least 2% of their profit on CSR in charitable activities. या तो कंपनी खुद करे या फिर किसी संस्था को दे दे। और हम सभी जानते हैं कि कंपनी का काम क्या है, बिजनेस करना, ना कि चैरिटेबल वर्क करना। So company better focuses on their business activities and they prefer giving donations of that amount to NGOs to do the further spendings, further activities on social ground. कि समाज सेवा के कार्यों के लिए, जमीनी स्तर पर समाज सेवा के कार्य करने के लिए जो कंपनी है CSR ग्रांट के रूप में एनजीओ को ट्रांसफर कर देती है फंड को। और आप हैरान होंगे जान करके कि इंडिया में जो इंडियन कॉर्पोरेट्स हैं, ₹25,000 crore एनुअली CSR फंड्स अवेलेबल है कॉर्पोरेट के पास टू गिव एज डोनेशंस टू एनजीओज। सो बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है एनजीओ के लिए टू गेट CSR फंडिंग। कुछ लोग बोलते हैं कि CSR फंडिंग जेन्युइनली नहीं मिलता है, अनब्ला, ये सब बकवास है। CSR फंडिंग जेन्युइनली मिलता है। अगर आप जेन्युइनली काम करते हैं, यू विल गेट CSR फंडिंग। और इसके लिए इस बार से फ्रॉम दिस अप्रैल 2021 दो चीज कंपल्सरी कर दिया गया है कि अगर आपको CSR फंडिंग लेना है
तो आपके पास 12A और ATG का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, नंबर 1। नंबर 2, आपके पास CSR का रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। एक फॉर्म नंबर CSR 1 आया है जो कि MCA के पोर्टल पर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पोर्टल पर अवेलेबल है। वहां से डाउनलोड करके आप फाइल कर सकते हैं, ऑनलाइन ई फाइलिंग कर सकते हैं इसको। आपको CSR फॉर्म 1 फॉर्म डाउनलोड करना है, उसको फिलअप करना है, उसको डिजिटली आप साइन करेंगे। आपका जो प्रोफेशनल है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ही विल सर्टिफाई दैट फॉर्म, एनी CA कैन सर्टिफाई। फिर उसको अपलोड करना है और आपके पास CSR का सर्टिफिकेट आ जाएगा, which looks like something like this। ये हमने किसी अपने क्लाइंट का कराया है, पटना के क्लाइंट से। तो इस तरीके का दिखता है, आपको एक CSR का सर्टिफिकेट आपके मेल पर आ जाएगा बाय आफ्टर फाइलिंग CSR 1 फॉर्म। तो आप NGO रन कर रहे हैं तो अपना NGO आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए। यू मस्ट हैव 12AB एंड ATG रजिस्ट्रेशन, और अगर CSR फंडिंग लेना है यू ऑल्सो गेट CSR रजिस्ट्रेशन ऑफ योर NGO। आगे बात करते हैं रिगार्डिंग फॉरेन फंडिंग, क्योंकि इंडिया में तकरीबन 1 लाख करोड़ एनुअली फॉरेन फंडिंग आया करता है NGOs के लिए। लेकिन अगर आपको फॉरेन फंडिंग लेना है तो आपके संस्था के पास FCRA का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। FCRA का रजिस्ट्रेशन जो है इंडिया में गृह मंत्रालय से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से मिलता है। वहां पर एक FCRA विंग है। इसके लिए पहले आपको फॉर्म फिलअप करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट ओपन करना है, न्यू दिल्ली मेन ब्रांच में। अकाउंट ओपन करने के बाद आपको अप्लाई करना है इन फॉर्म नंबर FC3A। उसके बाद आपके संस्था का प्लस आपके मेंबर्स का IB का इंक्वायरी होगा। अगर आपका काम जेन्युइन है, आपके मेंबर्स जेन्युइन लोग हैं, कोई क्रिमिनल्स नहीं है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स उनका नहीं है, साफ छवि के लोग हैं, क्लीन इमेज के लोग हैं, तो IB का रिपोर्ट ओके आएगा एंड आपको FCRA का सर्टिफिकेट ग्रांट कर दिया जाएगा। आफ्टर गेटिंग FCRA सर्टिफिकेट ओनली यू कैन एक्सेप्ट फॉरेन डोनेशंस। अगर आपने FCRA सर्टिफिकेट के बिना फॉरेन डोनेशंस रिसीव कर दिया है तो जेल का रास्ता बिल्कुल साफ है आपके लिए, कोई आपको नहीं बचा सकता। सो कई लोग क्या करते हैं, अरे हमारा जानने वाला है, कोई फॉरेन में रह रहा है, उसने ट्रांसफर कर दिया ऐसे ही डोनेशंस। सर जी, चाहे नॉन कंप्लायंस 1 रुपये का हो, चाहे 1 करोड़ का हो, चाहे 100 करोड़ का हो, नॉन कंप्लायंस इक्वल है, उसके लिए पेनल्टी प्रोविजंस भी इक्वल है, जेल का ड्यूरेशन भी बराबर है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप बिना FCRA रजिस्ट्रेशन लिए कोई फॉरेन डोनेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यू गेट FCRA रजिस्ट्रेशन फर्स्ट, देन यू कैन एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अब रही बात, बिकॉज दिस इज प्लेटफॉर्म ऑफ AMP, तो लोगों में भी भ्रम है फैला हुआ कि दिस गवर्नमेंट इज नॉट गिविंग FCRA रजिस्ट्रेशन टू मुस्लिम एसोसिएशंस। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जनाब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई हैव सो मेनी ऑफ माय क्लाइंट्स, दे आर हैविंग FCRA, पर आपको कोई भी डिफिकल्टी आप मुझसे कनेक्ट करिए, आई विल बी एबल टू गेट दैट FCRA रजिस्ट्रेशन फॉर यू, अगर आपका वर्क जेन्युइन है तो। मैंने साफ बोला है, बिकॉज इसमें IB की इंक्वायरी होती है, तो आपके संस्था का और आपके संस्था के मेंबर्स का इमेज क्लीन होना अनिवार्य है इसके लिए, देन ओनली यू कैन गेट FCRA सर्टिफिकेट। सो मैंने बताया कि अगर आपके संस्था को FCRA का फॉरेन कंट्रीब्यूशंस लेना है, देन यू मस्ट हैव FCRA रजिस्ट्रेशन एंड देन ओनली यू कैन एक्सेप्ट फॉरेन डोनेशंस। आगे हम बात करते हैं, CSR मैंने बता दिया आप लोगों को, एंड हियर एंड्स जो आज का हमारा प्रेजेंटेशन है रिगार्डिंग चूजिंग द बेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ NGO
और एक एनजीओ के लिए क्या क्या बेसिक रजिस्ट्रेशन एंड अप्रूवल्स होते हैं, जब मैंने बताया आपको नीति आयोग, 12A NATG, CSR रजिस्ट्रेशन, और एक बताया मैंने आपको अगर आपको फॉरेन फंडिंग लेना है तो FCRA रजिस्ट्रेशन। और इसके अलावा आप जिस भी मिनिस्ट्री में ग्रांट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, वहां से एनजीओ को बहुत सारा ग्रांट मिलता है। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, देयर आर सो मेनी स्कीम्स करंटली रनिंग इन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में बहुत सारे स्कीम्स हैं, लाइक नई रोशनी, नई मंजिल, उस्ताद, सीखो और कमाओ, मानस, इतने सारे स्किल डेवलपमेंट के स्कीम्स है अल्पसंख्यक कार्य सर मंत्रालय मुझे में। को होस्ट बनाइए जरा उसमें। सो मेनी स्कीम्स आर देयर जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं। बट व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस, क्योंकि आपको किसी भी मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट का अगर आपको अप्लाई करना है, ग्रांट लेना है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल your NGO must be empaneled with that ministry or that department. आपको अपने संस्था को उस मिनिस्ट्री से, उस डिपार्टमेंट से पहले एम्पैनल्ड कराना पड़ेगा, then only you can apply for grants. So that's all friend, thank you so much. अब जो भी आपके क्वेश्चंस क्वेरीज हैं, फारूक भाई, I think I can take questions now. Yes, Rajesh bhai, you can take the question now. Yes, तो जिनका जो भी क्वेश्चंस है, You can Rajesh, see sir. it in a question and answer section. I have some connectivity issue, so you can see it in a question and answer Okay. window. राजेश सर, मेरा पहला सवाल है। जी सर बोलिए। Excuse me, मतलब we'll go by with one by one, please. We'll allow, है ना? एक बार हम मेरे एक साथ दो सवाल हैं। तो पहला तो सवाल ये है कि कोई एनआरआई अगर अपने इंडिया में सेविंग अकाउंट से ट्रांसफर करता है किसी एनजीओ को, तो क्या ये एफसीआरए एक्ट में आएगा, नहीं आएगा? सिटीजनशिप कहाँ है सर उनके पास? इंडियन सिटीजनशिप है? हाँ, इंडियन ओरिजिन का अभी एनआरआई स्टेटस है बंदे का। ओरिजिन अलग चीज हो गया सर। सिटीजनशिप कहाँ का है? सिटीजनशिप इंडियन, यस, इंडियन ओनली। इंडियन सिटीजनशिप ट्रांसफरिंग फ्रॉम इंडियन अकाउंट कोई दिक्कत नहीं जी सर। अच्छा, एक चीज और है, क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉइज या सेमी गवर्नमेंट या फिर पीएसयू एम्प्लॉइज ट्रस्ट सोसाइटी के मेंबर, अध्यक्ष या सेक्रेटरी वगैरह हो सकते हैं क्या? 2020 तक अलाउड था, अलाउड अब भी है, लेकिन उनको फिर एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। मतलब वो हो सकते हैं बट एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा जी, बिल्कुल बिल्कुल जी जी। तो उसमें कोई लीगल तो नहीं है कोई इशू? नहीं सर, नहीं सर जी जी। नहीं। अच्छा, बस एक लास्ट, सॉरी फारूक भाई, 3 हो गए। क्या एक नाम से 2 सोसाइटी या 2 ट्रस्ट या फिर एक सोसाइटी एक ट्रस्ट हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। एक ही बंदा, मतलब एक ही बंदा एक सोसाइटी भी रजिस्टर करता है और ट्रस्ट, है ना? कोई इशू नहीं। अलग अलग पैन नंबर हो सकते हैं, फिर दोनों अलग अलग होगा, बिल्कुल अलग अलग होगा। थैंक यू सर। मैंने बोला कि आपका जो ट्रस्ट का और सोसाइटी का नाम जो होता है वो रिजर्व नहीं होता है। जी जी। तो आप 10 सोसाइटी बनाइए सेम नाम से, 10 ट्रस्ट बनाइए सेम नाम से, कोई दिक्कत नहीं है, बनाते भी है लोग। ठीक है सर, थैंक यू। नदीम खान जी का क्वेश्चन है, कैन वी कन्वर्ट ट्रस्ट? राजेश भाई, you can stop your screen sharing, फिर आपको माशाल्लाह हम लोग पूरा देखेंगे। राइट। जब भी बड़ा छोटा देख पा रहे हैं। शुक्रिया। फर्स्ट क्वेश्चन है नदीम खान जी का, कैन वी कन्वर्ट ट्रस्ट इनटू एनजीओ? पहली बात नदीम जी, ट्रस्ट एनजीओ होता है। तो हमने बोला कि एनजीओ 3 टाइप के होते हैं। जैसे इंसान 2 प्रकार के होते हैं, मेल फीमेल, और एक, अब चलिए दूसरा कॉमन हम बात कर ले, बट मेल फीमेल अगर हम बात करते हैं तो आप ये क्वेश्चन बोले क्या मेल को हम इंसान में कन्वर्ट कर सकते हैं? ये वाला बात हो गया। यहाँ पर ट्रस्ट भी एनजीओ होता है। आई थिंक आपका क्वेश्चन ये होगा कि कैन वी कन्वर्ट ट्रस्ट इनटू सोसाइटी? आंसर इज नो। मैंने बोला था आपको कि इसके लिए क्या करें, आप पैरेलली एक एनजीओ बनाएं, पैरेलली एक ट्रस्ट बनाएं या सोसाइटी बनाएं, और 3 साल के बाद में ट्रस्ट को आप ट्रांसफर कर सकते हैं सोसाइटी में। द ट्रस्ट कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू सोसाइटी, कैन बी टेकन ओवर बाय सोसाइटी, बट कैन नॉट बी कन्वर्टेड। कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है।
रफीक अब जी का आपके क्वेश्चन है, आपके कहने का मतलब ये है कि कोई अगर ट्रस्ट अगर चल रही है उसको हम सोसाइटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इट हैज टू बी अ न्यू एंटिटी, है ना, अगर हम लोग कुछ बनाएंगे। राइट राइट, न्यू मतलब एंटिटी उसको टेक ओवर कर सकती है। उस पर थोड़ा सा रोशनी डालने, मतलब टेक ओवर से क्या मुराद है, मतलब कोई अगर एग्जिस्टिंग सोसाइटी है वो किसी ट्रस्ट को टेक ओवर कर सकती है, और एग्जिस्टिंग सोसाइटी जो है वो किसी दूसरी सोसाइटी को भी टेक ओवर कर सकते हैं। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग? यस यस यस, मैंने ये बोला कि जैसे ट्रस्ट है, तो ट्रस्ट में हमेशा एक आखिरी क्लॉज होता है, डिसोल्यूशन क्लॉज। उसमें लिखा होता है कि इन केस दिस ट्रस्ट इज डिसॉल्व्ड, all the assets and properties of the trust shall be transferred to some other NGO having similar objects. अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपने अगर अपने ट्रस्ट को सोसाइटी में भेजना है, यानी ट्रस्ट आपको नहीं रन करना, सोसाइटी रन करना है, जी जी, तो आप क्या करेंगे, ट्रस्ट को डिसॉल्व करेंगे, और जो ट्रस्ट का एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज और एक्सपीरियंस है, that will be transferred to your society. ओके। और ट्रस्ट जो है आपका डिसॉल्व हो जाएगा, जो आपने नया एंटिटी क्रिएट किया सोसाइटी, वहां पर चला जाएगा पूरा। डिसॉल्व करने के लिए रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। एक डिसोल्यूशन डीड बनता है इसका, अगर ट्रस्ट डीड बना है तो एक डिसोल्यूशन डीड भी बनेगा इसका। आपने जैसे रजिस्टर किया है वैसे ही डिसॉल्व भी करना है। रफीक भाई का क्वेश्चन है, एक रफीक परवालकर जी का, कैन वी स्टार्ट एन एनजीओ फॉर अ पर्टिकुलर कॉज लाइक डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लोज व्हेन द एम इज अचीव? बिल्कुल कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। फैसल अहमद जी का क्वेश्चन है, सोसाइटी के नाम निर्धारण के संबंध में थोड़ा विस्तार से बताएं, कौन कौन से नाम रख सकते हैं, कौन कौन से नाम नहीं रख सकते? किसी भी नाम को रख सकते हैं, आपके नाम में इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, आर्यवर्त नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ अलाउड है सर। गांधी भी नहीं हो सकता आपके नाम में। कुछ एनजीओ वो देखी हैं जिनके नाम के साथ इस तरह का जुड़ा हुआ है, इंडिया, भारत, वो अब मैं इसके ऊपर और लोग बाग उसको एनकैश करते हैं, उसको दिखा के लोग। एक तो जो पुराने है वो है। जी जी, ये अच्छा, जो डिसीजन आया है कोर्ट का, ये अब आया है, आज से 10 साल पहले आया है। अब अभी भी हो जाता है। इसके पीछे रीजन क्या है कि एक बच्चा अगर पैदा हो गया तो पैदा हो गया, चाइल्ड वंस बोर्न कैन नॉट बी मेड अनबोर्न, राइट। तो रजिस्ट्रार क्या करते हैं, कई बार बाय मिस्टेक, मतलब वो मिस्टेक कैसे होता है आप सब जानते होंगे, वो बाय मिस्टेक क्या करते हैं कि इंडिया वर्ड अलाउ कर देते हैं। जी भाई हम अप्लाई तो कर ही सकते हैं, हमने अप्लाई किया और रजिस्ट्रार साहब ने रजिस्टर भी कर दिया। अब रजिस्ट्रार साहब बोल देंगे गलती से हो गया। अब बच्चा मतलब जो सोसाइटी है गलती से पैदा हो गया तो पैदा हो गया तो हो गया, बन गया, राइट। इसको अनबोर्न नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से ये ज्यादा जो डिस्क्रिपेंसी इस ताल्लुक से रहती थी वो ट्रस्ट में ज्यादा हो, मतलब रहती होगी। सोसाइटीज में सोसाइटी भी कर देते हैं, सोसाइटी में फिर भी थोड़ा सा चेक्स बैलेंसेस ज्यादा है। गलती का लेवल क्या है, ठीक ठीक, आप कैसे गलती करवा रहे हैं उनसे। अच्छा, इसी से जुड़ता हुआ मेरा एक सवाल है, जैसे कई धार्मिक संस्थाएं रहती हैं, कोई मंदिर है, मसाजिद है, मदरसे हैं, ठीक है ना, तो वो उनके जो स्पेसिफिक ऑपरेशंस हैं वो जग जाहिर रहते हैं किस सिलसिले में चलाए जा रहे हैं। अब वो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है उस चीज में कि कुछ जगहों पर कहा जाता है कि भाई कोई एक धर्म विशेष के लिए नहीं होना चाहिए, कोई एक स्पेसिफिक उसके लिए नहीं होना चाहिए, बट स्टिल देयर आर रजिस्ट्रेशन ऑफ सम ट्रस्ट एंड द सोसाइटी। तो वो कहाँ पे वो उसका थोड़ा सा मतलब एक विंडो अवेलेबल है कि कोई मस्जिद हो या कोई मदरसा हो या कोई ऐसे इंस्टीट्यूशंस हो जो किसी एक कम्युनिटी को ज्यादा मतलब केटर कर रहा है, कोई मंदिर है, कोई आर्य समाज का ट्रस्ट है कि वो सब आर्य समाज के लोगों के लिए ज्यादा वो कर रहे हैं, सपोर्ट सिस्टम जो अवेलेबल है ना, मतलब करते सबके लिए, तो वो कहाँ पर उसका थोड़ा सा अगर आप बताएं कि कहाँ पे थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल है इस ताल्लुक से। अरे भाई क्या होता है, एक इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई भी संस्था रिलीजियस है, इफ द ऑब्जेक्ट इज रिलीजियस,
then that organization will not get ATG license. उनको ATG का रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है। इसीलिए लोग संस्था को रिलीजियस होते हुए भी नहीं बनाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप एक पार्टिकुलर कम्युनिटी के लिए वर्क कर रहे हैं जी, then also that society or that organization is charitable. There is no bar कि आपको without discrimination आपको काम करना है। right. There can be discrimination. A particular organization can be there for a particular caste, particular community, or particular region, particular area also. ये पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है सर इस चीज के लिए, ये अलाउड है। एटीजी में वो देखे हैं कि कुछ लोगों के पास है इस तरह से, धार्मिक संस्थाओं के पास भी। मैंने वही बोला कि उसको क्या करते हैं, फिर उसको एक अलग कलर देते हैं। अब बड़ा बारीक सा डिफरेंस है, वेरी माइन्यूट डिफरेंस है बिटवीन रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल। ओके, अगर आपका संस्था रिलीजियस है जी, अगर आप किसी धर्म विशेष का प्रचार या पूजा पाठ या जो भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके संस्था का उद्देश्य यह है कि भारत की जो प्राचीन जो सभ्यता है, जो कल्चर है, उसका प्रचार प्रसार करना है, उसको आगे बढ़ाना है, then that is not religious. So some organization may look like from outer side that yes it is religious, but their object may not be religious, their object may be spiritual. okay. बट वो इस प्लेटफॉर्म पे बताना बहुत डिटेल में संभव नहीं है। नहीं, ठीक है, वो आपकी गुरु की सेवाएं हम अलग से लेंगे उस ताल्लुक से। शुक्रिया। अगले सवाल पे आते हैं। निसात सुल्ताना जी का सवाल है, व्हाट शुड बी ऑब्जेक्ट फॉर इंक्रीज इन फॉरेन केस ऑफ वर्किंग फॉर एजुकेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट। इस क्वेश्चन का आंसर मैं दे चुका हूं निसात सुल्ताना जी, कि अगर आपका बिल्कुल स्टार्टअप लेवल है, गो फॉर ट्रस्ट, अदरवाइज इफ यू आर clear about your scale of operations and you are confident about your operations, you should go for Section 8 company. अब्दुल जी का क्वेश्चन है, कैन अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय रन एन एनजीओ? यस, नो इशू। बशीर भाई का क्वेश्चन है, फॉर रजिस्टरिंग इन दर्पण 12A इज मैंडेटरी? नो, नॉट मैंडेटरी। अच्छा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय ट्रस्ट सोसाइटी में ऑफिस बेटर हो सकते हैं? हो सकते हैं सर, अगर उनका ऑफिस अलाउ करता है तो। नहीं तो ये इस पे गवर्नमेंट का क्या मैंडेट है? मतलब एज पर गवर्नमेंट मैंडेट या प्रोटोकॉल क्या है? डू दे अलाउ पर्सन रिलेट टू डिफेंस प्रोफेशनल, इफ अ पर्सन इज फ्रॉम डिफेंस, ओके, ही कैन नॉट, अदरवाइज कर सकते हैं। डिफेंस वाले हैं, सीबीआई वाले हैं, वो नहीं हो सकते। आखिर सीबीआई भी डिफेंस में ही आता है, पुलिस वाले भी डिफेंस में ही आते हैं, तो वो नहीं हो सकते। अदरवाइज नॉर्मल लोग कर लेते हैं सर। और कॉर्पोरेट में तो कोई मसला है ही नहीं। एक सवाल चैट बॉक्स में आया हुआ है कि कॉर्पोरेट एम्प्लॉय कैन बी अ पार्ट ऑफ एनजीओ। हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो कंपनी ने अगर मना नहीं कर रही है तो। अच्छा, इसमें एक चीज है, सीएसआर के ताल्लुक से, उसी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है, मान लीजिए महिंद्रा का है, और वही वहां से सीएसआर अप्लाई करता है, तो वहां कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के चलते रिजेक्ट हो सकता है, या आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है इसका? नहीं, ये भी होता है। दूसरी बात यह है कि जो भी ये कंपनी किसी को अपॉइंट करती है, तो अपॉइंटमेंट लेटर में जरूर लिखा होता है कि यू कैन नॉट होल्ड एनी ऑफिस इन एनी ट्रस्ट और एनी इंटरेस्ट इन एनी बिजनेस विदाउट प्रायर रिटन परमिशन फ्रॉम द कंपनी। दिस इज यू आर टॉकिंग अबाउट फॉर द फाउंडेशंस, फॉर द सीएसआर डिविजन, या फिर इन जनरल होता है? talking about normal offer letter of a company. अच्छा, okay. Wherever you join a company, in the appointment letter, this is a general clause that all companies are mentioning. Okay. क्योंकि उनका एम्प्लॉय अगर कहीं किसी और ट्रस्ट में मेंबर होता है या किसी और कंपनी में डायरेक्टर होता है जी, तो उस केस में क्या होगा कि उसका जो अटेंशन है या कंपनी के प्रति जो उसका डिवोशन है, that won't be 100% devotion. His interest will be diverted. Right.
So इसको कर्टेल करने के लिए कंपनी ऑलवेज पुट अ प्रोविजन दैट यू कैन नॉट होल्ड एनी सच काइंड ऑफ ऑफिसर्स और पोजीशंस एनीवेयर विदाउट रिटन कंसेंट ऑफ द कंपनी. सो आप कहीं ना कहीं उस एग्रीमेंट का जो आपके कंपनी के साथ में आपका एग्रीमेंट है उसको आप वायोलेट कर रहे होते हैं. बट उतना कौन देखता है, करके लोग चला लेते हैं, ठीक है, करते हैं लोग. आगे आ रहे हैं सर, सैयद अंजुम जी का क्वेश्चन है, व्हेन टू अप्लाई फॉर 12 NATG फॉर ट्रस्ट फॉर्मेशन. ये ट्रस्ट फॉर्मेशन के बाद में होता है, पहले नहीं होता है. अमजीत रिजवी जी का क्वेश्चन है, इन केस ऑफ ट्रस्ट ओनली ट्रस्टीज आर ऑथराइज्ड टू डिस्कस एवरीथिंग. Our members can also have authority to take decision. And can trust have yearly election? Yes, trust can have yearly election, कोई दिक्कत नहीं है. आप ट्रस्ट डीडी में जो भी लिखेंगे वही कानून बनता है. So if in trust deed you write that members can also take decisions, yes, they can also take decisions. जाबिर हुसैन जी का क्वेश्चन है, can we convert 1950 Act NGO into 1860 NGO? Conversion possible नहीं है. मोहम्मद खुर्शीद अख्तर जी का क्वेश्चन है, कुड यू प्लीज सेंड मी डिटेल्स एंड प्रोसीजर्स व्हिच फॉर्म्स फॉर ओपनिंग एनजीओ इन इंडिया एज एनआरआई, हाउ मच विल चार्ज फॉर योर सर्विस. ये मेरा मोबाइल नंबर मैंने शायद आपने देखा होगा स्क्रीन पे, आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा पर्सनल. जी हम लोग दे देंगे, सब इनको दे देंगे, जितने भी हमारे रजिस्टर्ड अटेंडीज हैं, वी विल शेयर ऑल द इनपुट. मोहम्मद खान साहब पूछना, डू यू नीड टू पे एनीथिंग टू गवर्नमेंट? आंसर इज नो. टू ओपन एनजीओ नहीं, कुछ नहीं. नॉर्मल फीस होता है 1100 रुपीज का, वो आपको पे करना है. ये एनोनिमस अटेंडी हैं, इनका क्वेश्चन है कि वी हैव 12 NATG, फाइन कब लगता है, क्या रिपोर्ट देना होता है इनकम टैक्स में? मैंने बोला कि 2 रिपोर्ट देना है. एक तो देना है आपको सर्टिफिकेट ऑफ डोनेशंस टू योर डोनर्स, और एक देना आपको स्टेटमेंट ऑफ डोनेशंस टू इनकम टैक्स. अगर आप नहीं देते हैं 31 मई तक, तो उसके नेक्स्ट डे से आपके ऊपर 200 पर डे का पेनल्टी फाइन जो है, लेट फीस जो है लगता है, और 10,000 से 1 लाख रुपए तक का पेनल्टी आपको लग जाता है. मोहम्मद अकमल जी का क्वेश्चन जो मैं टेकअप नहीं कर सकता, इनका क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एम्पैनल्ड विद एनी मिनिस्ट्री. काफी लंबा हो जाएगा वो, so in next webinar I will cover that. How to get PAN number of trust. एक फॉर्म नंबर 49A होता है, उसको अप्लाई करेंगे. मैं ये क्वेश्चन है कि हम एक ही परिवार के सभी सदस्य, माता पिता, भाई बहन आदि लोग मिलकर सोसाइटी ट्रस्ट गठन करते हैं, तो क्या उचित है? बिल्कुल उचित है और नियमानुसार सही भी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. बाकी बहुत सारा सवाल है फारूक भाई, मैं आपको उसमें से फिल्टर करके बताता हूँ कुछ सवाल, क्योंकि मैं बीच में से लॉग आउट हो गया था, तो मैं कुछ पहले नहीं देख पाया था. लेट मी फिल्टर इट. कोई बात नहीं, हमने लास्ट टाइम इससे ज्यादा सवाल लिए थे. आई रिमेम्बर वी एड्रेस अराउंड 87 क्वेश्चन इन ऑन 7th March. मैं आपको फिल्टर करके बताता हूँ. ये इसी में ना, मेरे को एक चीज बताइए, आपने वैसे तो स्लाइड में शो किया था, व्हाट इज द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन का? फारूक भाई मैं राजेश भाई सुन पा रहे हैं? बहुत ज्यादा नहीं है, देख लिया, क्विकली खत्म करता हूँ जी. लास्ट क्वेश्चन है चैट बॉक्स में भी है जी, चैट बॉक्स में भी सवाल है, वो मैं बोल लूंगा. अच्छा, वो आप देख लीजिए. आसिफ खान जी का क्वेश्चन है, सर्टिफिकेट ऑफ डोनेशन एंड रिसीट ऑफ डोनेशन वन एंड सेम थिंग? नो, दोनों अलग अलग है. फॉर्म नंबर 10BD और 10BE होता है इसका. मोहम्मद माजिद शेख जी का क्वेश्चन है, ATC का रिसीट डोनेशन सर्टिफिकेट होता है? आंसर इज नो, अलग होता है. तो मेरा सवाल राजेश जी ये है, आप एक हमारे नए एनजीओ पार्टनर्स के लिए जो नई एनजीओस बना रहे हैं या भी बनाई हैं, डॉक्यूमेंटेशन के ताल्लुक से आप एक बार उनको फ्लो बता दें, थोड़ा फ्लो चार्ट के सेंस में, या फिर वैसे कि आप सबसे पहले ये बनाइए फिर ये करिए. जैसे पहले पैन कार्ड बनाइए, फिर आप अकाउंट खोलिए, उसके बाद आप नीति आयोग पे रजिस्टर करें.
तो आप एक बार क्रम से ऑर्डर वाइज उनको बताएं, क्योंकि कई कई बार लोग डायरेक्ट 12A और 80G और CSR और उनकी बात करते हैं। तो जी। एक बार जरा वो आप थोड़ा सा उस पर रोशनी डाल दें कि किस में कितना वक्त लगता है, और हम ये क्रम जो है, ये सीरियल जो है, उस हिसाब से मतलब एक बार बताएं। मैंने एक्चुअली डिस्कशन जो किया है वो वैसे सीरियली ही किया है। जी। सबसे पहले तो आपको एनजीओ को रजिस्टर्ड करना है, चाहे ट्रस्ट बनाए, आप सोसाइटी बनाए, सेक्शन 8 कंपनी बनाए, आपको पहले एनजीओ रजिस्टर्ड करना है। देन सेकंड आपके पास जो वर्क है वो है अपना पैन कार्ड अप्लाई करना, पैन कार्ड लेना, बैंक में अकाउंट ओपन करना। ये सब काम जब हो जाए, किसी ने सवाल करा है, ये बैंक अकाउंट करंट होना चाहिए, सेविंग होना चाहिए? अगर आप आपका मशवरा। 12A और 80G है तो सेविंग होगा, नहीं, अदरवाइज शुरुआत में तो बैंक अकाउंट होगा ही नहीं ना। अभी तो हम नई ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, एनजीओ फॉर्म करा, रजिस्टर पैन कार्ड बनाया, अब आदमी बैंक अकाउंट खुलवाने जब एनजीओ वाला कोई भी जाता है तो व्हाट इज योर सजेशन? इट शुड आइडियली बी अ सेविंग अकाउंट। कई बार लोग समझते हैं कि साहब इंटरेस्ट हमारे पास आ जाएगा काफी, जब फंड होगा उसकी अर्निंग हो सकती है, या करंट अकाउंट ही सजेस्टेड है? आपका क्या राय है? एज पर बैंकिंग रूल इट कैन बी करंट अकाउंट ओनली। अच्छा। लेकिन कई बार बाय मिस्टेक बैंक भी यहाँ पर सेविंग अकाउंट ओपन कर देते हैं। अगर ओपन हो जा रहा है तो यू शुड गो फॉर सेविंग अकाउंट। ओके। इफ यू कैन यू गो फॉर सेविंग अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट मिलेगा आपको वहां पर। अदरवाइज तो करंट अकाउंट ही ऑप्शन है। चलिए, पहले पैन कार्ड बना, उसके बाद अकाउंट खुला, उसके बाद नेक्स्ट? उसके बाद नीति आयोग रजिस्ट्रेशन। आफ्टर नीति आयोग यू गो फॉर 12A एंड 80G। उसके बाद आपको 3 साल वेट करना है FCRA के लिए। FCRA के लिए और CSR के लिए, दोनों ही 3 साल के बाद होगा। 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एनजीओ। इसमें एक सवाल ये है कि जो हम लोग जब 12A के लिए मान लें 12A सर्टिफिकेट नहीं आया, डिले हो रहा है, लेकिन इस बीच में जो डोनेशन रिसीव हो रही हैं उसका क्या रहेगा? फिर मान लीजिए 12A पूरे फाइनेंशियल ईयर में आया ही नहीं, किसी भी रीजन से, कोरोना हो गया या क्या हो गया, जो भी है ना, ये टेक्निकल उसमें कोई निटिग्रिटी रही, तो उस पे जो टैक्सेबल वो लायबिलिटी है वो कैसे रहेगी? अप्लाइड फोर करके क्या कुछ रिबेट मिल जाती है क्या? नहीं मिलता। नहीं मिलता। ओके। तो कितना भी अमाउंट होगा वो अपना एज पर इनकम, जो इनकम टैक्स वाला जो स्लैब है, 30% तक 30% तक उसमें जाना पड़ेगा, है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ये समझ में आ गया। अगला सवाल मेरा था, कुछ आजकल ना बड़ा ट्रेंड है मतलब लोगों का क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू फंड जनरेट करने का। तो उसमें जो प्लेटफॉर्म के लिए टैक्सेशन की क्या लायबिलिटी है? मान लीजिए मैंने अपना कोई क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म बनाया, वहां पे लोग आ रहे हैं, पैसा लोग दे रहे हैं, डोनर जो है वो बेनिफिशियरी को देख के वो पैसा अपना डोनर के अकाउंट में ट्रांसफर ये कर रहे हैं। इट इज अ ट्रांसपेरेंट, जितना पूरा पैसा आया पूरा चला गया। अब उस केस में जो फंड जो ट्रांसफर हो रहा है, तो वहां पर 12A 80G के बेनिफिट वगैरह वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं? एग्रीगेटर जो है प्लेटफॉर्म जो है वो मिलेगा। जी जी, कोई डिफरेंस नहीं है। कोई डिफरेंस नहीं है, वो उस प्लेटफॉर्म के थ्रू हमें मिल सकता है, प्रोवाइडेड उस प्लेटफॉर्म के पास वो हो। ठीक है, राइट। मैं कुछ सवाल चैट बॉक्स से ले लेता हूँ, अभी हमारे पे 5-7 मिनट बाकी हैं। हाँ सर, एक सवाल मेरा ये था कि किसी ने ट्रस्ट बनाया हुआ है, तो वो किसी नए बंदे को ट्रस्टी अपॉइंट कर सकता है क्या? कर सकता है, भले ही वो ट्रस्ट का हिस्सा रहे या ना रहे, जो नया बंदा है। बिल्कुल कर सकता है, कोई कितने भी लोगों कैसे भी लोगों को अपॉइंट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। रेजोल्यूशन के थ्रू। एक सवाल ये मुझे आया है ट्विटर पे, इसमें ये पूछ रहे हैं कि ट्रस्टी जो है वो सिर्फ 2 ही लोग हैं, लेकिन जब दर्पण की साइट पे और नीति आयोग की साइट पे अप्लाई कर रहे हैं, सो वहां पर 3 पर्सन की डिटेल मांग रहे हैं, तो उस केस में क्या किया जाए? किसी एम्प्लॉय का नाम डाल दीजिए। किसी भी एम्प्लॉय का नाम डाल सकते हैं? जी 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 ठीक, उसका आधार कार्ड और एम्प्लॉय का नाम डिटेल डाल के जी। अच्छा, एक CSR के ताल्लुक से और गवर्नमेंट का फंडिंग के ताल्लुक से सवाल है। इन जनरल
जो गवर्नमेंट है या कॉर्पोरेट है, वो ट्रस्ट, सोसाइटी या कंपनी, इन तीनों में से किसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल रहती है? कोई डिफरेंस नहीं। कोई डिफरेंस नहीं। लोगों में ये भ्रम है कि साहब CSR के लिए कि हाँ, लोगों में भ्रम है कि सेक्शन 8 को लेके थोड़ा कंफर्टेबल होते हैं वो लोग। ना ना ना, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है कुछ। एनजीओ के एम्प्लॉय पे कोई अगर क्रिमिनल केस होगा तो ATG 12A पर भी FCRA तो मिलेगा ही नहीं मिलेगा, वो तो जब IB की मतलब रिपोर्ट में आ जाएगा। एम्प्लॉई तो पे केस ATG होने और से कहीं पे 12A कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ओके। एम्प्लॉई पे केस और होने से अगर कोई फर्क नहीं एनजीओ के प्रमोटर कोई अगर फाउंडर्स या तो नहीं एग्जीक्यूटिव में मिलेगा, कोई लोग तो हैं, FCR नहीं मिलेगा। FCRA नहीं मिलेगा, लेकिन ATG 12A पर भी मिल कोई जाएगा, कोई दिक्कत इशू नहीं, हो कोई सकता, दिक्कत नहीं। कोई मिल जाए। ठीक। पॉलिटिकल केसेस क्योंकि आजकल लोग ज्यादा कर देते हैं, इस वजह से। इनकम टैक्स लीगल इलीगल में डिफरेंशिएट नहीं करता। ओके। पैसा आपका लीगल हो इलीगल हो, आप टैक्स पे करिए। इनकम टैक्स का काम नहीं है देखना कि ये लीगल है कि इलीगल है। इनकम टैक्स का काम सिर्फ सरकार के लिए टैक्स इकट्ठा करना है बस। ठीक। मतलब जो दर्पण कंसेप्ट है समझना पड़ेगा हमें। समझ। एक सर, किसी साहब स्टेट ने सवाल करा है कि उनके ITR में और पैन कार्ड में स्पेलिंग का गलती है, तो इनको किसी ने मशवरा दिया है कि दूसरा पैन कार्ड बनाइए। ये मेरा ख्याल से तो गलत मशवरा है। ये ना, उसी करेक्शन पैन कार्ड कैसे में हो नाम सकता है उस करेक्शन कराना ITR? पड़ेगा। नाम 49 AE फॉर्म होता है, उसमें करेक्शन कराना पड़ेगा, दूसरा नहीं अप्लाई। 49 AE। जी जी। अली साहब, आपके सवाल का जवाब आई होप आपको मिल गया होगा। ट्रस्ट शुरू करने के लिए कोई फिक्स नंबर ऑफ पर्सन की जरूरत रहती है? आई थिंक 2 इज द नंबर। 2। ठीक। 2 और वो हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, फैमिली कोई भी हो मेंबर्स सकता है, कोई भी हो सकता है। प्रोसीजर टू कन्वर्ट ट्रस्ट इनटू सोसाइटी, ये तो होता ही नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। Someone has asked what is the process of registration for societies working without registration for long time, say 5-10 years? तो उनके लिए तो वो नया ही होगा सब कुछ, है ना? हाँ, सब कुछ नया 10 ही साल होगा, से काम कर रहे हो तो उनको मतलब उसका कोई मतलब नहीं है उसका। हाँ। लेकिन क्या ये ATG वगैरह में वो काम आएगा? वो नॉन रजिस्टर्ड वाला नहीं जो आएगा, विंडो है कुछ नहीं आएगा। वो लोग कहते हैं उसमें आप लगा दीजिए, फोटो वगैरह लगा दीजिए, क्लिपिंग लगा दीजिए अखबार की, आसानी से मिल लगा जाता है। दीजिए, लगा दीजिए और चल भी जाता है। अच्छा, ठीक। तो पुराना काम अगर डॉक्यूमेंटेड है आपका, सो दैट फोटो तो दिखेगा ही, उस पर डेट थोड़ी लिखा हुआ है। लोगों के बहुत सवाल है, ट्रस्ट को सोसाइटी में बदलना चाह रहे हैं, लेकिन आपने जैसे सजेस्ट करा कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अगर ट्रस्ट है उसको ट्रस्ट में ही चलते रहने दें, कोई बहुत ज्यादा। फारूक भाई, जी फारूक भाई, जी जी। मेरा एक्चुअली 11:30 का फ्लाइट है। अच्छा, बस हम लोग खत्म कर हाँ, कर रहे हैं। तो शुक्रिया थोड़ा सा शुक्रिया। ले मतलब लेट अस क्लोज। और माशाल्लाह आपने बहुत सारे सवाल लिए हमेशा की तरह, और वी आर ग्रेटफुल कि आपने बहुत कम शॉर्ट ये प्रोग्राम में शामिल हुए। आपके प्रोग्राम सेमिनार्स में लोग अटेंड करने के लिए हजारों ये रुपया खर्च कर सकते हैं। हमने भी खुद किए हुए हैं जाती तौर पे, बट वी आर काइंड, मतलब यू आर काइंड एनफ कि आपने AMP के लिए वक्त ये निकाला और इसको ज्वाइन करा। इंशाल्लाह आपको जरूर बुलाएंगे अगली बार भी। कुछ हमारे पे साथियों के सवाल हैं जो स्किल पार्टनर के तौर पे जुड़ना चाहते हैं या कुछ उस तरीके से, तो उस बारे में मैं आपको जरूर वो नेक्स्ट टाइम हम लोग बुलाएंगे। अब मैं दावत दूंगा अपने दमन से, हमारे साथ ही हैं शुएब साहब, शेख शुएब साहब, वो आए और एक फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स और दुआ के साथ इस प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेके चले। शुएब भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मैं राजेश भाई का थैंक्स बोलूँगा कि राजेश भाई काफ़ी समय आपने दिया है हमें, और काफ़ी अच्छी जानकारी जो है हमारे सारे NGOs को मिली है, और जितने NGOs अभी न्यू ज्वाइन हुए हैं उनको भी पता चला है कि क्या डिफ़िकल्टीज़ होती है। दूसरा थैंक्स हम मानना चाहेंगे AMP का, एसोसिएशन मुस्लिम प्रोफेशनल से सारी NGOs को एक साथ कनेक्ट करके यहाँ पे जो है तो ये इतना पीसफुल जो है इतना डीटमी प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित किया है। तीसरी चीज़ है कि AMP के जो NGO कनेक्ट की टीम है, यहाँ पे इसकी जो सेंटर टीम है और यहाँ पे जो NGO कनेक्ट की कम्प्लीटली कोर टीम है,
इनके भी हम बहुत बहुत थैंक्स मानते हैं इस चीज़ के लिए कि इन्होंने बहुत मेहनत से मतलब ये सब एनजीओ को कनेक्ट करवा के ये सारी चीज प्लेटफॉर्म हमें बताया इस चीज़ में कि सारी एनजीओ के साथ में मतलब किस तरीके से करना है, क्या प्रोसेस है, सब कुछ बताया है। जज़ाकल्लाह खैर। फारूक भाई दुआ कर लें। हाँ दुआ कराइए शुएब भाई। फारूक भाई जी इसमें कोई एनजीओ अगर बिहार से हो, मैं या आपको जी कहिए कहिए मथुरा से हो तो उनके लिए हमारे पास कुछ वर्क है, ओके वो मुझे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पे। ठीक आप सब लोग शेयर कर मैं दीजिएगा। मैं आपको कोऑर्डिनेट करा दूंगा। और राजेश भाई आपको क्योंकि आपने ये जिक्र करा तो बताता चलूं, हमारे पे माशाल्लाह हमने अभी एक एनजीओ अवार्ड आयोजित किया था जो मैंने आपको बताया, जिसका हमने अवार्ड सेरेमनी 15 तारीख को की थी। और तकरीबन 2200 के आसपास नई एनजीओ हमारे पास 15 तारीख तक रजिस्टर्ड हुई, और उसमें से 2200 में से 700 प्लस एनजीओ जो हैं वो बिहार और झारखंड से हैं। अच्छा। और हमारा उद्देश्य यही है कि हिंदुस्तान के कोने कोने में गरीब इलाके जो हैं जिनको हम लोग कहते हैं, है ना, और गांव गांव तक लोगों तक हम लोगों के काम और आप लोगों के साथ मिलके हम लोग उनकी सेवा करें, उनको सिखाएं, ताकि कि ये लोग आगे चल के अपने देश की सेवा कर सके। तो हमारे बिहार और झारखंड के स्टेट हेड रियाज भाई इस प्रोग्राम में है, पैनल में आपको वो दिख रहे हैं मेरा ख्याल से। तो मैं आपको इंशाल्लाह हमारी जो एनजीओ वहाँ की स्ट्रॉन्ग रहेंगी, हम उनके साथ आपको कनेक्ट करेंगे। ये सब प्लेटफॉर्म और इन सब चीजों का पर्पस ही हमारा ये है कि हम आने वाले वक्त में एक दूसरे की कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे कर सके। अब देखिए जैसे आपने बड़े खूबसूरती से ऑफर करा, तो हम लोग जरूर इस चीज पे ध्यान वो ये रखेंगे और इंशाल्लाह आगे भी इन तरह के प्रोग्राम को करते रहेंगे। मैं आपको उनका नंबर दे दूंगा और एक बार हम लोग आपस में बात भी ये कर देंगे। वी विल गो अहेड विद द वन जो हमारे प्रायोरिटी पार्टनर्स हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है या कर रहे हैं, तो हम लोग वही आपको रेफर करेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया। ठीक है फारूक भाई, थैंक यू। शुक्रिया। एक बार शुएब भाई जरा दुआ करा दीजिए छोटी सी मुख्तसर सी। जी जी। और मैं फारूक भाई थोड़ा सा निकलूंगा। जी जी प्लीज प्लीज, मैं लेट हो रहा हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आई अप्रिशिएट। शुएब साहब जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम व इलैका सलाम फ़इन्ना बनस सलाम व रफ़िना सलाम तबारक रब्बना तआला या ज़लालिल इकराम। ऐ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, आज यहाँ जमा तमाम लोगों के जो है अपने अपने रहमत नाजिल फरमा। ऐ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, इस एसोसिएशन के ज़रिए से जो एनजीओस यहाँ पे कनेक्ट हुई है, अल्लाह ताला हमें नेक नीयत से, खुलूस से और सबके साथ मिलकर के साथ काम करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हम तमाम को इंसानियत के लिए, कौमियत के लिए, मुल्कियत के लिए काम करने की तौफीक दे। ऐ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, आज यहाँ पे एनजीओ कनेक्ट की जो टीम ने जो मेहनत से जो अपने प्रोग्राम को किया है, अल्लाह उनकी टीम को जो है उसमें कामयाबी अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिकल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया शुएब भाई आपकी इस दुआ के लिए। और मैं इस प्रोग्राम के जरिए मैं हमारे जितने भी अटेंडीज हैं उनका शुक्रिया करूंगा कि उन्होंने अपना कीमती वक्त, आज संडे का दिन है, फैमिली के साथ गुजारने का वक्त रहता है, लेकिन आप सब लोग इसमें शामिल हुए। और हमारा जो मकसद है अपने एनजीओ पार्टनर्स के लिए या जो और एनजीओज और सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनको यकीन मानिए हमारी फिक्र उनके साथ है, हम उनसे सीखने को तैयार हैं, उनको सिखाने को तैयार हैं। तो कैपेसिटी बिल्डिंग के ये प्रोग्राम चलते रहेंगे। आपको जो ग्रुप में शेयर किया गया था व्हाट्सएप ग्रुप, आप ज्वाइन कीजिए, एएमपी के एनजीओ कनेक्ट प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिए। इंशाल्लाह हम लोग साथ में मिलकर एक दूसरे की तरक्की में एक दूसरे का साथ देंगे। जज़ाकल्लाह खैर। लुक फॉरवर्ड टू सी यू in our next edition inshallah soon, very soon. You all will be informed. Please join our WhatsApp group. मैं एक बार ग्रुप में दोबारा से डाल देता हूँ ताकि कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे।